Welcome back, friends. In the last class, we completed the chapter current electricity. In this class, we will be seeing all the numericals, the solved examples. Okay. In the next class, we will be seeing the ones in the exercises. ठीक है, जो unsolved है वो. अभी numericals most of the students they think कि यार this is not my cup of tea. I'm not going to do numericals. So they will be saying कि नहीं ये बहुत tough है. Calculations are all very tough. But how many years you will run away from them? Okay, तो मैं हूँ, अभी मैं आया हूँ. I am there for you. Whatever the smallest of your doubt in numericals, I will clear. But I want you to be thorough in numericals. 9th standard it will help you, 10th also, and in your future also it will definitely help you. Keeping clarity in numericals is very good. Numericals का सबसे अच्छा फायदा है कि उसमें full marks ही आते हैं. You cannot get half a mark less and all. In while writing your answers in the exam, you can get half a mark less. Okay, you forgot to write this point and all. But if you are solving a numerical, you will definitely get whatever the marks it has been for. You will definitely get those marks. So let's start with the numericals in your textbook. Before we start, हम लोग देखेंगे इस पूरे चैप्टर में हमने फॉर्मूलेस कितने देखे. हाउ मेनी फॉर्मूलाज वी लर्नड इन द चैप्टर. तो देखो फॉर्मूलाज ये सबसे पहले हमने क्या देखा, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू. करेक्ट. तो V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू. फिर हमने देखा I करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम. करेक्ट. देन वी सॉ R इज रो L अपॉन A. Then we saw V is equal to IR, Ohm's law, and then we saw resistance in series and resistance in parallel. Only these 6 formulas are there in the whole chapter. बाकी के सब formulas इन्हीं को twist करके बनाओ. Okay, this only formula they will twist and they will write Q is equal to IT. तुम बोले oh I didn't know this formula Q is equal to IT. Oh my God, है ना. तो ऐसा नहीं है, यही formula है. इसी को Q is equal to IT, the T will go there and it will become Q is equal to IT. Okay, so basically they are only these 6 formulas which you have to study. इसी के ऊपर based सब कुछ है. All the numericals are there, everything is there. So let's start with page number 33, that is in your science book. Okay, तो पहला जो example है, first example, what are they saying? A current of 0.4 amperes. Okay, so we write down a current of 0.4 amperes flows through a conductor for 5 minutes. So time दिया हुआ है 5 minutes. How much charge would have passed through the conductor? तो तुमको क्या निकालना है, चार्ज. तो देखो I दिया है, T दिया है and Q is asked, चार्ज. तो I, T and Q का कौन सा फॉर्मूला है? Obviously this formula. अभी कुछ बच्चे और एक गलती करते हैं, while they are studying they will make a list of this formula and they will keep it beside them. Okay, 1 or 2 days it is okay. 2-4 दिन अभी when you are practicing it is okay. But lifetime if you are doing practicing this thing, then तुम लोग एग्जाम में भी तुमको लगेगा अरे यार अभी लिस्ट होता तो मैं फटक से कर देता. ऐसा नहीं. It's your responsibility to learn this formula. So as soon as you see I is there, T is there, Q is there, तो तुमको पता चलना चाहिए फॉर्मूला कौन सा लगाना है अपने को. I is equal to Q upon T. तो फॉर्मूला लगा दिया I is equal to Q upon T. इसमें क्या हम लोगों ने Q अननोन है, कोई बात नहीं. I की वैल्यू पुट कर दी. अभी टाइम देखो ना दिया 5 मिनट्स में. वी सॉ इन केस इन द प्रीवियस क्लासेस पहले देख लिया कि टाइम बाय हमेशा सेकंड्स में होता है. वेदर इट इज एमकेएस, वेदर इट इज एसआई, वेदर इट इज सीजीएस, एसएसएस, हर इसमें सेकंड्स ही आ रहा है. तो हमको सेकंड्स में ही मिलना है. 300 सेकंड्स कर लिया इसका. You people are clever enough to understand what I have written, correct? So you get I is equal to Q upon T. तो ये मिल गया अपने को. इसमें हमको Q की वैल्यू मिल गई 120 coulombs. Writing the unit is very essential, otherwise marks कट हो जाएंगे. तुम बोलेंगे सर न्यूमेरिकल्स में तो मार्क्स कट नहीं होते. ऐसा नहीं. If you do such blunders, ये 120 करके छोड़ दे Q equal to 120, है ना. ऐसा नहीं भाई, अच्छे से लिखो 120 क्या coulombs. Okay, तो the examiner also wants to check whether you know the units also. Okay, तुम लोग बोलते कि अरे इतना तो the teacher knows its coulombs and why they are cutting marks. ऐसा नहीं. The teacher is saying whether you know that if it is coulombs. Okay, so be careful while you are writing the answer and the units also. Okay, let's move to page number 38. पेज नंबर 38 पे जाएंगे.
filament in a light bulb is 1000 ohm. So the resistance is how much? 1000 ohm. If the bulb is fed with the current of a source potential 230 volts, then how much current will flow through it? Direct answer is इसमें देखो R दिया, V दिया तुमको, I पूछा हुआ है, करेक्ट? तो ऑब्वियसली R भी है, मतलब ऑलरेडी V इक्वल टू I है, करेक्ट? ज्यादा सोचेंगे नहीं, लिख दिया फॉर्मूला के V इक्वल टू I, so V इक्वल टू I, we have to find out R. ये नीचे आ गया, I is equal to correct, therefore you got I is equal to 0.23 ampere. समझ में आ रहा है बच्चों? Next we will move to question number 2. Example 2 on page 38, which looks to be something different. उसमें पाई वगैरह आ रहे, बोले सर इतना तो मैथ्स हमने 8th में कभी मैथ्स भी नहीं किया, इतना तो साइंस के अंदर मैथ्स आ गया है ना? ऐसा नहीं है ना, ऐसा ऑप्शन को नहीं डालेंगे बोले बाद में करेंगे, अभी आलस आ रहे, ऐसा नहीं, अच्छे से करेंगे। ये क्वेश्चन लाइफ टाइम के लिए आता है, नेक्स्ट ईयर भी ऐसे टाइप के क्वेश्चंस यू आर हैविंग इन द चैप्टर, यू हैव अ चैप्टर ऑन करंट इलेक्ट्रिसिटी नेक्स्ट ईयर आल्सो, सो यू बी हैविंग टफर क्वेश्चंस देन दिस, तभी जाके फिर से अटकोगे, उससे अच्छा अभी करो तो तभी जाके फायदा होगा। ओके, लेट्स मूव टू द, लेट्स सी व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग एंड फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो द क्वेश्चन सेज द लेंथ ऑफ कंडक्टिंग वायर इज 50 सेंटीमीटर, तो लेंथ आपको दिया 50 सेंटीमीटर। अभी तुम्हारे इसमें इसके बाद डायरेक्टली ये लिखा हुआ है, एंड मेनी ऑफ यू आर वंडरिंग कि व्हाट इज इट एग्जैक्टली, हाउ डिड दे डू दैट ब्लंडर। तो वैसा नहीं भाई, इट्स नॉट अ ब्लंडर, उन्होंने सोच समझ के किया, क्या किया देखो, 50 सेंटीमीटर भी डिवाइडेड बाय 100 टू बिकम मीटर, करेक्ट? तो दैट इज 50 अपॉन 100 मीटर। 100 मतलब ये क्या, 10⁻², वही ऊपर आ गया तो क्या हो जाएगा, 10⁻², सिंपल। देखो ये ऊपर आ गया तो क्या हो गया, 10⁻² हो गया, तो हमको मिल गया 50 × 10⁻² मीटर। ठीक है, ये हो गया हमारा L। अभी रेडियस का देखेंगे, रेडियस तुमको दिया हुआ है इन द नेक्स्ट लाइन, व्हाट आर दे सेइंग, एंड इट्स रेडियस इज 0.5 mm। अभी 0.5 mm देखो, 0.5 अपॉन 1000, so that is 0.5 अपॉन 10⁻³ that is, फिर से वही सेम किया हमने, इधर ये मीटर है, ये भी मीटर में, अब ये 10⁻³ ऊपर जाएगा ना रे भाई, लेकिन उसके पहले ये पॉइंट हमारा दुश्मन, किसी को पॉइंट पसंद नहीं है, यहाँ पे किसी को पॉइंट पसंद है तो मुझे बताओ। ओके, कोई भी ऐसा नहीं जिसको डेसिमल पॉइंट पसंद है, एवरीबॉडी वांट्स टू गेट रिड ऑफ दैट डेसिमल पॉइंट, सो टू गेट रिड ऑफ दैट डेसिमल पॉइंट यहाँ पे करेंगे × 10 करेक्ट, दोनों साइड तो कर दिया, तो क्या मिला 5 अपॉन 10⁻⁴। अभी ये 10⁻⁴ ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5 × 10⁻⁻⁴ मिल गया। ये देखो, यू आर वंडरिंग इसके ऊपर से ये कैसे मिला, यू पीपल आर वंडरिंग, बट दिस इज हाउ इट इज वर्किंग। ओके, तो तुमको L मिला, R मिला, ठीक है। अभी क्या तुमको बोलो, पूछ क्या रहे, रेजिस्टिविटी। सो वी नो द फॉर्मूला, देयर इज ओनली वन फॉर्मूला फॉर रेजिस्टिविटी, ये इसके ऊपर से हमको मिला था रेजिस्टिविटी रो इज RA अपॉन L, करेक्ट। सो द फॉर्मूला इज RA अपॉन L। तो R तो उन्होंने दिया हुआ है किधर, तो आई थिंक दे गिवन द वैल्यू ऑफ R, इफ द रेजिस्टेंस इज 30 ओम, मतलब कैपिटल R इज इक्वल टू 30 ओम, दिस गिवन टू यू। तो रो इज इक्वल टू RA अपॉन L, ठीक है। तो R तो दिया है, L भी दिया है, मगर A तो दिया ही है, A के वजह से खुद सा रेडियस दिया हुआ है, फिर रेडियस का क्या करेंगे हम लोग, हमको तो A चाहिए है ना। तो we saw what is a cross section yesterday, whenever a conductor, okay, it is cut, then you get a circle here, and that circle is nothing but area of cross section, वही तुम्हारा cross section होता है, correct, means it is a circle, और area of a circle is what, pi r square। तो हम लोग area of cross section निकालेंगे क्या, pi r square। समझ में आया सबको ये हम लोग क्यों कर रहे हैं, तो हमको मिल गया area is equal to pi r square, that is pi, ये r हम लोग ने इतना मेहनत करके निकाला, इसको यहाँ पे पुट
कर देंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। तो 3.14 एज इट इज, 5 का स्क्वायर 25 एंड 10⁻⁻⁴ का 10⁻⁻⁸ मीटर स्क्वायर। बिकॉज व्हाई मीटर स्क्वायर? बिकॉज इट इज एरिया एंड एरिया इज ऑलवेज इन मीटर स्क्वायर। सो नाउ यू गॉट एवरीथिंग। तुमको ए भी मिल गया है ना, तुमको ए भी मिल गया। फॉर्मूला लिख देंगे रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। तो देखो आर ये पूरा तुम्हारा ए अपॉन ये पूरा एल। बोलेंगे सर ये कितना टफ है कैलकुलेशन? कुछ टफ नहीं है ना, अच्छे से करेंगे। इसके बाद डायरेक्टली ये दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में, आई विल टीच यू हाउ टू रीच टिल दिस कैलकुलेशन, दिस आंसर कैलकुलेशन इजीली हम लोग कैसे करेंगे। देखो ये 0 गया, ये 0 गया, कितना सिंपल। अभी देखो 5 1 जार 5, 5 जार, अभी देखो 3 into 5 कितना 15 into 3.14 into ये 10⁻⁻² ऊपर जाएगा ना, तो देखो क्या होगा लॉ ऑफ इंडाइसेस से 10⁻⁸ into 10⁻²। तो ये माइनस ऊपर जाएगा तो ऐसा होगा ना, इसको क्या करोगे ऐड करोगे तो 10⁻⁻⁶ आएगा बराबर इंटू 10⁻⁻�6। ये ऐड होता है ना बच्चों, याद करो लास्ट ईयर पढ़ा था लॉज ऑफ इंडाइसेस, ऐड होता है करेक्ट। तो -8 + 2 you will get -6 that is equal to 47.1 into 10⁻⁻�6 करेक्ट। अभी इसको एक पॉइंट को इधर शिफ्ट किया, एक पॉइंट इधर शिफ्ट किया मींस द वैल्यू बिकेम लेस। मतलब इसको कैसे किया देखो इन लोगों ने, दैट इज 4.71 into 10 into 10⁻⁻�6 दिस इज नथिंग बट 10⁻⁴ अभी 4.71 ऐसे ही क्यों किया? देखो यार तुम लोग घर वर खरीदते हो, तुम्हारे पेरेंट्स है ना घर वर खरीद रहे, वेरी रिच पीपल नाउअडेज दे आर बाइंग हाउसेस। बोले कितने का खरीदा घर? 1.2 करोड़ है ना। कोई ऐसा बोलते हैं क्या कि ओके 10.7 थाउजेंड, ऐसा कोई नहीं बोलते हैं। यू वांट टू से लाइक दिस 1.2 करोड़ है ना, 3.6 लाख है ना। कल को बोले कि अरे मोबाइल कितने का लिया? हाँ 1.3 लाख। हाँ अभी आईफोन 17 आया 1.3 लाख। ओके सो वी ऑलवेज वांट टू टॉक है ना, ऐसा 1 पॉइंट 2 पॉइंट है ना, ओनली वन नंबर वी वांट टू कीप हियर, इसलिए ये एक डेसिमल हमने इधर शिफ्ट किया। तो ये क्या मिला अपने को इनटू 10 किया है ना। देखो फिर से इनटू 10 करोगे डेसिमल इधर आ जाएगा। नाउ दिस 1 + -6 बिकेम 10⁻⁻⁵ तुमको मिला 4.71 into 10⁻⁻⁵ एंड ओहम मीटर। ओहम मीटर कैसा? यू नो द यूनिट फॉर रो इज ओहम मीटर, हम लोगों ने ये क्लास में कर चुके। ओके आई होप आई हैव एक्सप्लेन्ड यू द कैलकुलेशन वेरी वेल, होप यू अंडरस्टूड दिस फॉर्मूलाज एंड ये जो हम लोगों ने किया है ठीक है। इतने क्वेश्चंस अच्छे से करो।